So in the previous lab, we have discussed some basic MATLAB commands. Some basic MATLAB commands. And you have noted also basic MATLAB commands. So first command we have discussed, that is how to declare a variable. How to declare a variable. Suppose I write x equal to 5. Then there is a variable x is created in the workspace. Second thing we noted, if I write x equal to 5 and semicolon, then the output on the screen will not be displayed. So this semicolon operator is known as suppress operator. It suppresses the output on the screen. So it is a suppress operator. The output of x equal to 5 will be x equal to 5. MATLAB will give you x equal to 5. But the output, this one, nil. You will get nil output on the screen, command window. Third thing we have noted, that range operator. If I write y equal to 1 to 7, then this command will give me the output 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the range is from 1 to 7 with a default increment of 1. Default increment of 1. If I write this command as 1 colon 1 colon 7, then again I will get the same output. 2. 1 to 7. First value is 1, last value is 7. The increment is 1. So the middle value is increment. Clear? Middle value is increment. So this command 1 to 7 and 117. 1 to 7 and 117 will have the same effect, because if I will not provide the default increment, then it will take default increment as 1 only. It is inbuilt function in the MATLAB. If I write this command as in this way, first value is 1 with a default increment of 5, and the last value is 16. So this command will give me the output. First value is 1, increment 5, so 1 plus 5 is 6, 6 plus 5 is 11, 11 plus 5 is 16, and 16 plus 5 is 21, but it is beyond limit. So the output is having only 4 terms, 1, 6, 11, and 16. So this is something about the range operator we have discussed in the last lab. And after that, we have discussed a command control plus C. So this command is used to terminate the program. If the program is taking so much time and you do not want to run the full program, you want to terminate in between. So then you can use this function as to terminate the program. Clear? One more command we have discussed, CLC. CLC means to clear the screen. Clear the screen. Only the screen, not the variables. And one more command we have discussed in the last lab is clear. So clear command is used to clear the workspace. Clear the workspace means clear all the variables present in the workspace. काफी क्वेश्चंस आए थे आपके लास्ट टाइम. आपने कहा था कि मैं सारे वेरिएबल्स, I don't want to clear all the variables, I want to clear a specific variable. Then the command is like that, clear x. So only the x variable will be cleared. Y will remain in the memory by this command. So this is somewhat summary that we have discussed in the last lab. And now I am coming to today's focus. So today's focus is we will create a matrix. In the last lab, we have also plotted a straight line also. So in this lab, we are going to plot a circle. We are going to plot a circle. Please hold. Hello? हाँ बोलिए.
हाँ तो मैं अभी क्लास में हूँ ना, आप तो 1-2 घंटे बाद बात कर लीजिए प्लीज, है ना। So we will see how to plot a circle plotting. In this lab we are going to do. And number third is how to create a matrix, how to plot a circle. Circle, you already know that there is a circle is having coordinates, x, y, this is general point x, y, this is the center of the circle C, this is point P having coordinates x, y. So the equation of the circle is x square plus y square equal to r square, where you can say r is the radius of the circle. R is the radius of the circle. So x square plus y square is r square. We will plot this circle. We will plot this circle. After that, suppose I am having a matrix. Let this is a matrix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, or I say 11, 12, 13. So let this is a 3 by 3 matrix. I will create such type of matrix, and let I am having matrix A and matrix B. So let this is matrix A, and I am having another matrix B, which is also having some size like 3 by 4. The size is 3 by 4. So I will create this matrix also, and then after creating, I will go for the matrix multiplication. So we will see the matrix multiplication also in this lab. Matrix multiplication. We will work so many functions on the MATLAB because MATLAB is matrix laboratory. The name of the MATLAB is the full form of the MATLAB is matrix laboratory. So this is having so many functions, so many rich functions on the matrix, है ना। तो जितना ज्यादा हम मैट्रिक्स के फंक्शंस को यहाँ पर प्ले कर लेंगे, उतना ही हम प्रोग्राम बनाने में स्ट्रांग हो जाएंगे। तो मैट्रिक्स वाले फंक्शंस पे आपको बहुत ध्यान से आज समझना है कि मैट्रिक्स के फंक्शन मैटलैब के अंदर कितने ज्यादा रिच हैं और वो एक इंजीनियर के लिए किस तरह से यूज हो सकते हैं। चलिए, तो दिस इज समथिंग समरी टुडेज फोकस। तो हम मैट्रिक्स की एडिटिंग भी करेंगे, है ना। मैट्रिक्स के अंदर हम बहुत सारा काम करेंगे। अभी आप देखेंगे हम मैट्रिक्स के साथ बेसिकली वी विल प्ले विद द मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स के साथ एक तरह से प्ले करेंगे, भिन्न भिन्न तरीकों से, भिन्न भिन्न प्रकारों से वी विल display. So this is the today's focus. So now I am stop sharing this board and I am opening the MATLAB window. I am opening the MATLAB window and I am sharing the MATLAB file. So first I will open my MATLAB window. Yeah, so MATLAB is opening. It will take around 30 seconds to open. Then I will share it with you, and then I will show you how to create a matrix in the MATLAB. So how many participants are with now? 55 participants. Okay, good strength, है ना? 55 participants are with me. So that I am sharing my MATLAB window. So my MATLAB window has not been opened till. It will take some time. 30 seconds more it will take. First I check that it is opened or no. Oh, it is opening. It is opening. It is a big software, so it takes memory. So it will be open in around 30 seconds or maximum 1 minute. It will be open. So let's come to here in the Zoom window.
Yeah, so MATLAB is now opened. It is now ready. It is showing ready. So I am just sharing that window. So let's share a screen with the MATLAB window. Share. Please tell me that the MATLAB window is appearing to you. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. है ना? So this is the command area. है ना? This is the command area. So if I want to create a matrix, let the matrix name is A, or let the matrix name is capital A. So equal to, I will use the square bracket, and let my first row is 1, 2, 3, 4. So I will write 1, space 2, space 3, space 4. I will write in this way, 1, 2, 3, 4. If I press enter, then you will see A equal to 1, 2, 3, 4. So this matrix is a vector basically. It is having 1 row and 4 columns. So size of this matrix or size of this vector is 1 row and 4 columns. So I can check the size also. If I give a command size and size of matrix A, press enter, then you are seeing 1 row and 4 columns. Okay. So now I want to make another matrix B equal to, and I write 34 colon, let 38 and square bracket close. I press enter. So this is another matrix 34, 35, 36, 37, 38. So in this way, this is also having 1 row and 5 columns. This is having 1 row and 4 columns. And if I want to check the size of B, then just using size of B, then it will give us 1, 5. Now I want another matrix. Let go. You also have a view in the workspace window. So there is a matrix A is a variable, B is also a variable, A is a matrix, B is a matrix, and answer is the default variable. Sometimes I call some command size of A, and then the variable answer, ANS answer, is a default variable in MATLAB. Okay. If I give the variable, suppose the same command size of B, and if I giving some variable, let I am giving the variable R of R and S, R for row, C for column. So these are the variables equal to. So this will give us R equal to 1, C equal to 5, means row is 1, column is 5. So in this way we can execute the matrix. Let now make a big matrix. So I am clearing CLC command to this window, and let I make a matrix capital X is a matrix equal to square brackets. If I write let 1, 2, 3, this is my first row, 1, 2, 3, or let one more element 4. This is my first row, 1, 2, 3, 4. Then I put a semicolon. Semicolon is for the next row. MATLAB understands that the first row has been ended and the second row is starting. So let the second row elements are 11, 12, 13, 14. These are the elements of the second row. Let there is a third row, let 21, 22, 23, 24, like that. So if I press enter, then you will see the output in this way. So capital X is a matrix which is having 3 rows and 4 columns. So this is the first row, 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14 is the second row, 21, 22, 23, 24 is the third row. Okay. Now if you want to find the size of X, you want to find the size of X, capital X matrix, then you will get output R equal to 3 and C equal to 4. So you will get R equal to 3 and C equal to 4. This is the row and column. Class चलिए बात नहीं करो.
So R equal to 3, C equal to 4. ओके सो अभी तक कोई डिस्कस कर लीजिए जरा, यदि मैट्रिक्स क्रिएशन में कोई प्रॉब्लम है तो मैट्रिक्स क्रिएशन का सीधा सा रूल है, यू डिफाइन द फर्स्ट रो, देन पुट ए सेमीकोलन, then give the elements for the second row, then put a semicolon, then give the element for the third row and so on. आप कितनी भी रो बना सकते हैं ना, and put all the data into a square brackets, into the square brackets. So this is capital X is a matrix. तो अभी तक कोई आपकी डाउट हो मैट्रिक्स क्रिएशन में, प्लीज डिस्कस. सब 3 रो और 1 कॉलम का कैसे बनाएंगे? 3 रो एंड 1 कॉलम yes, बहुत आसान है, देखिए अभी बनाते हैं हम. लेट E इज ए मैट्रिक्स इक्वल टू, ओके, लेट द फर्स्ट रो इज हैविंग एलिमेंट 100, I will put a semicolon. Then the second row is having let element 200, I will put a semicolon. Then let the third row is having 300, I will put a semicolon. Let the fourth row is 500, then I will end. So this matrix size is, what are you saying? I think आप यही चाह रहे थे. yes sir. और सर अगर हम 100 सेमी कॉलम और ये 200 की और बस इतना ही चाहें कि 2 रो हो और 1 कॉलम हो, तो ये तो उससे उस तक मतलब पूरी लिख देगा बीच में शायद, पूरी जैसे मतलब एक लाइन लिखते हैं ना. देखो मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप उसमें 10 रो और 12 कॉलम दे रहे हैं, ठीक है. 10 रो और 12 कॉलम का मतलब कितने एलिमेंट हो गए मैट्रिक्स के टोटल? 120 एलिमेंट हो गए. तो आपको 120 एलिमेंट देने होंगे ना. यदि आप 120 एलिमेंट की जगह कुछ कम एलिमेंट आप देते हैं, ठीक है, यदि आप कुछ कम एलिमेंट्स देते हैं तो मैट्रिक्स आपको क्या देगा? एरर देगा, है ना. उस केस में मैटलैब आपको बोलेगा योर मैट्रिक्स इज नॉट प्रॉपर्ली डिफाइंड, क्योंकि मैट्रिक्स की डेफिनेशन जब भी पूरी होती है जब आप उसके सारे एलिमेंट्स प्रोवाइड करें. मैट्रिक्स का कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ब्लैंक नहीं हो सकता, है ना. जहां पर भी इस तरह की कोई दिक्कत आएगी ब्लैंक होने की, देन मैट्रिक्स आपको मैटलैब आपको तुरंत सचेत करेगा और आपको बताएगा कि आपका मैट्रिक्स प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है. ठीक है, चलिए अब मैं दोबारा से CLC कर दे रहा हूँ. ठीक है, अब इधर देखिए वर्क स्पेस विंडो में कितने वेरिएबल डिफाइंड है? A, B, T, X, आंसर C, R. हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 7 वेरिएबल्स आर देयर, है ना. 7 वेरिएबल्स. Okay, now I am clearing all the variables, so I will use clear command. So all the variables in the workspace will be cleared. देखिए साफ हो गया बिल्कुल वर्कस्पेस. ठीक है, अब मैं आपको एक मैट्रिक्स बनाता हूं. ठीक है, मान लीजिए मैं लिखता हूं लेट A इज ए मैट्रिक्स, लेट स्मॉल a इज ए मैट्रिक्स. आप स्मॉल a भी ले सकते हैं, कैपिटल A, है ना. मैटलैब केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. सो स्मॉल a इज डिफरेंट वेरिएबल एंड कैपिटल A इज डिफरेंट वेरिएबल, है ना. आप ये ध्यान रखिए, स्मॉल a इज डिफरेंट, कैपिटल A इज डिफरेंट. सो स्मॉल a इक्वल टू, लेट आई एम डिफाइनिंग ए मैट्रिक्स, square matrix, let I am giving 2 with an increment of 2 and up to 20. ये क्या हो जाएगी? 2 की टेबल है वो कि नहीं? इट इज अ टेबल ऑफ 2. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, like 2 to 20 with an increment of 2. So let I am putting a semicolon, means my first row is complete, है ना. Next row is starting. So let next row is 3 with an increment of 3 and the last value is 30. So it is a table of 3. And the next is 4 with an increment of 4 and the last value is 40. And one more, let 5 with an increment of 5 and 50. So please check, 2 to 20 is my first row, 3 3 30 is my second row, 4 4 40 third row, 5 5 50 fourth row. तो अब इस मैट्रिक्स में यदि मैं इसको प्रेस करूं एंटर, व्हाट इज द आउटपुट ऑन द स्क्रीन? सो स्क्रीन आउटपुट इज
there is a table of 2 in the first row, table of 5 in the last row, and table of 3 and 4 in the middles. Yeah. So this, what is the matrix size now? Matrix size is 4 rows and how many columns? How many columns? It is having 10 columns. So the size of the matrix A is 4 row and 10 columns. Okay. If I now write B is another matrix, and I write A dash, B equal to A dash, what will happen? What will happen? Initially the size is 4 by 10. Now the size is 10 by 4. Transpose. So B is having 10 by 4 size and A is having 4 by 10 size. So there are two matrices now. One matrix is A and one matrix B. एक का size 4 by 10 है, दूसरे का size 10 by 4 है. If I multiply these two matrices, let's another matrix C, which is a multiplication of A and B. So I will just write C equal to A into B. C equal to A into B. बताइए क्या size, क्या कितने एलिमेंट आएंगे इसके अंदर अब? 4 into 4. Yes. So C equal to A by A into B. Press enter. What are you seeing? You are seeing 4 by 4 matrix. You are seeing 4 by 4 matrix. 1540 is the first element. तो इसको आप जरा चेक कर सकते हैं. MATLAB is never wrong. तो ये 1540 आपको कैसे मिला है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से मिला है ना. तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करता है ये. इधर का रो लेगा, इधर का कॉलम लेगा. तो 2 into 2 2 square, 4 into 4 4 square, 6 into 6 6 square, 8 square, 10 square, 12 square and so on, 20 square. और उन सभी को आप प्लस करेंगे, then you will get 1540. जिस तरह से आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते रहे हैं अब तक, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके दे देगा. करेक्ट. चलिए एक 2 by 2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं और थोड़ा सा उसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं. लेट देयर इज अनदर मैट्रिक्स D इक्वल टू, और एक छोटा सा मैट्रिक्स बना रहा हूं. लेट 1 2 सेमीकोलन 3 4. 2 by 2 की मैट्रिक्स है ना. 1 2 3 4. अब मैं एक और मैट्रिक्स बना रहा हूं E, और वो भी 2 by 2 का मैट्रिक्स है. लेट मैं दे देता हूं 5 6 सेमीकोलन 7 8 5 6 7 8. 2 by 2 मैट्रिक्स. तो अभी आपके पास स्क्रीन पर दो छोटे छोटे मैट्रिक्स अवेलेबल है. एक 2 by 2 का है और दूसरा भी 2 by 2 का है. यदि आप D into E अप्लाई करें, D multiplied E, तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, तो उस मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा वो किस वेरिएबल में चला जाएगा? देखो अभी यहां पर तो मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया था C, कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक तीसरे वेरिएबल C में चला जाए. Here I am not defining the third variable, so the MATLAB will create a default variable answer, है ना. अभी देखो वर्क स्पेस में कोई आंसर नाम से वेरिएबल नहीं है. There is no ANS variable, but you will execute this command, then there will be ANS variable. So let press enter. So what answer you are getting? 19 22 43 50. और देखिए इधर आंसर वेरिएबल आपका आ चुका है. ठीक है. अब आप इस 19 को तो इजीली चेक कर सकते हैं. जरा चेक करिए 19 आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका. 1 into 5 5, 2 into 7 14, 5 plus 14 9 है ना. वो पूरा सही रहेगा. मतलब मैंने एक जस्ट चेकअप के लिए बताया है. तो ये मेरा जो 1540 आया था, ये भी मेरा एकदम एग्जैक्ट है. इसमें आपको कोई संशय नहीं रखना है कि ये गलत होगा या सही होगा. ये सही ही होगा, बिकॉज इट इज सॉफ्टवेयर कमांड. ठीक है सर. ये जो D मल्टीप्लाइड बाय E है, आपने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है ना, इसके लिए कोई स्पेसिफिकली वेरिएबल नहीं लिया है ना? हाँ, मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल असाइन नहीं किया, तो मैटलैब ने अपनी तरफ से एक वेरिएबल असाइन कर दिया. और उस वेरिएबल का नाम है आंसर वेरिएबल. ओके. ठीक है. यदि आप अपनी तरफ से वेरिएबल असाइन नहीं करेंगे तो मैटलैब खुद असाइन करता है बाय डिफॉल्ट. और यदि आप असाइन कर रहे हैं तो फिर तो जो आपने असाइन किया वही रहेगा. ओके. ठीक है. तो ये अभी तक हमने क्या देखा कि मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है और मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे किया जाए.
करेक्ट है? मैं स्क्रीन को जरा साफ कर लेता हूँ। CLC स्क्रीन क्लियर हो चुकी है। अब मैं देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, इस कई सारे वेरिएबल हैं, इनमें से सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा है, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा रो हो और सबसे ज्यादा कॉलम हो, बताइए कौन सा है इसमें से? कॉल करके देख लेते हैं। मान लीजिए मैं ए को कॉल करता हूं, तो मेरे को ए लिखना है, प्रेस एंटर। ये देखिए ए मैट्रिक्स में 4 रो हैं, 10 कॉलम है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आंसर वेरिएबल को कॉल करता हूं, तो ANS आंसर के अंदर 2x2 की मैट्रिक्स है। यदि मैं बी को कॉल करता हूं, आई विल प्रेस बी, प्रेस एंटर, तो इसके अंदर 10 रो और 4 कॉलम है। यदि मैं सी को कॉल करता हूं, तो मुझे सी की हिस्ट्री पता लग जाएगी, 4x4 का है। यदि मैं डी को कॉल करता हूं, तो डी की हिस्ट्री पता लग जाएगी, है ना। डी प्रेस करिए, एक सेकंड। तो डी प्रेस करने से आपको वो भी 2x2 की मैट्रिक्स है। ई को प्रेस करिए, वो भी 2x2 की मैट्रिक्स। तो सबसे बड़ी मैट्रिक्स कौन सी है बताइए? अब तो बता ही सकते हैं। बड़ी से मतलब किस और ऐसा मैट्रिक्स कौन सा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा रोज है? सर बी में। बी में सबसे ज्यादा रोज है ना। तो चलिए हम बी पे थोड़ी सी वर्किंग करके कुछ सीखते हैं। तो लेट आई एम क्लियरिंग दिस स्क्रीन, और अब मेरा जो वर्क है वो केवल बी के बेस पे चलेगा, है ना। मैंने लिखा बी, तो बी को आप देख लीजिए, 10x4 का मैट्रिक्स है ये। कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है? 10x4 का मैट्रिक्स है, करेक्ट। हाँ, अब मान लीजिए मैं थोड़ी सी बात करूंगा इंडेक्सिंग पर। तो देखो इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 40 एलिमेंट है, 10 रो 4 कॉलम, तो 10 40 एलिमेंट्स हैं। तो इनकी इंडेक्सिंग होती है, जैसे ये एलिमेंट पहला एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट कितना है? 4, कॉलम वाइज देखें तो तीसरा 6, चौथा 8, पांचवा 10, छठवां 12, है ना। तो मान लीजिए मैं छठे एलिमेंट को कॉल करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, बी ब्रैकेट में 6, बी मैट्रिक्स का छठवां एलिमेंट कॉल हो जाए। देखिए आंसर क्या आ रहा है, 12। मेरी बात समझ पाए आप? मतलब मेरा कंट्रोल मैट्रिक्स के हर एलिमेंट पर है, मेरे पास इंडेक्सिंग अवेलेबल है ना। यदि मैं कॉल करूं B40, तो क्या आंसर आएगा इसका बताइए? मैं 40वें एलिमेंट को कॉल करना चाहता हूं, 50 आएगा। यस, तो आई विल प्रेस एंटर, देन यू विल गेट 50। So answer is coming 50, ठीक है। इन दिस वे यू कैन कॉल द मैट्रिक्स वैल्यूज। तो इस तरह की इंडेक्सिंग को हम कहते हैं लीनियर इंडेक्सिंग। दिस इज नोन एज लीनियर इंडेक्सिंग। और ये कॉलम वाइज चलती है, ये रो वाइज नहीं चलती है, कॉलम वाइज चलती है। तो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड एंड सो ऑन, दिस इज द 10th, देन दिस इज द 11th एलिमेंट। तो जब मैं 11th एलिमेंट को कॉल करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए? 3 मिलना चाहिए। तो इफ आई कॉल द 11th एलिमेंट B11, ब्रैकेट जरूर लगाने होंगे, then you will get answer 3. So this is somewhat column indexing, ठीक है। ध्यान रखिएगा मैं क्या क्या पढ़ाता जा रहा हूं। मैंने आपको मैट्रिक्स क्रिएशन बता दिया, ठीक है, मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी रो कॉलम कैसे देखते हैं, ठीक है। और अब मैंने आपको ये बता दिया है कि मैट्रिक्स के अंदर इंडेक्सिंग कैसे काम करती है, करेक्ट। अब मैं एक चीज और बताता हूं आपको। इंडेक्सिंग 2 तरीके की होती है, एक तो होती है लीनियर इंडेक्सिंग और एक होती है रो कॉलम इंडेक्सिंग। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी इसको CLC कर दिया, ठीक है, दोबारा से मैंने मैट्रिक्स B को कॉल कर दिया, या चलो इस बार A को कॉल कर लेते हैं, लेट A को हमने कॉल कर दिया। अब इस A मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, कॉलम वाइज ही चलेगा। दिस इज A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से इसकी इंडेक्सिंग चलेगी। तो मान लीजिए मैं लिखता हूं A13, तो क्या आंसर आना चाहिए जरा बताएंगे? कोई भी एक जना बता दो, A13 से क्या आंसर आना चाहिए? 8 आंसर आना चाहिए। सो आंसर इज कमिंग 8, ठीक है। तो ये मैंने कौन सी इंडेक्सिंग यूज की है? कॉलम इंडेक्सिंग यूज की है, लीनियर इंडेक्सिंग यूज की है, लीनियर इंडेक्सिंग। यस।
अब इस 8 को देखिए, ये जो 8 है ये कौन सी रो में है? पहली रो में है। फर्स्ट रो में, और ये कौन से कॉलम में है? चौथे कॉलम में, चौथे कॉलम में, फोर्थ कॉलम। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, A14। तो यहाँ पर A14 का मतलब है ए मैट्रिक्स के अंदर पहली रो और चौथे कॉलम का जो एलिमेंट है वो कॉल हो जाए। तो आंसर 8 आ रहा है। यस। तो सेम एलिमेंट कैन बी कॉल्ड बाय लीनियर इंडेक्सिंग आल्सो एंड बाय रो कॉलम इंडेक्सिंग आल्सो। तो ये रो कॉलम इंडेक्सिंग कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए मुझे इस 45 को कॉल करना है सपोज, तो इस 45 को मैं कैसे कॉल करूंगा? ए ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा जरा बताइए? 4,9। 4,9। वेरी गुड, है ना, फोर्थ कॉलम और 4 रो एंड फोर्थ रो नाइन्थ कॉलम। देन आई विल गेट आंसर 4। करेक्ट है बिल्कुल। यस। अच्छा चलिए, अब इसी पर थोड़ी सी और बात करते हैं। इसको मैं फिलहाल CLC कर देता हूं, इसी मैट्रिक्स पे बात चलेगी। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि इसकी रो नंबर 5, रो नंबर 5 तो इसमें है ही नहीं, रो नंबर 2, रो नंबर 2 पूरी की पूरी निकल के एक अलग मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है, तो मैं इसकी पूरी की पूरी रो नंबर 2 को अलग निकालना चाहता हूं। तो मान लीजिए एक नया मैट्रिक्स बना रहा हूं, n इज ए न्यू मैट्रिक्स, लेट n इज ए न्यू मैट्रिक्स, न्यू इज द नेम ऑफ द मैट्रिक्स, न्यू इक्वल टू, तो मैं क्या कर रहा हूं, ए मैट्रिक्स में से, ठीक है, कौन सा रो निकालना चाहता हूं? सेकंड रो निकालना चाहता हूं। हाँ, और कौन सा कॉलम निकालना चाहता हूं? ऑल दी कॉलम्स ना, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ये पूरा। तो ऑल दी कॉलम्स, तो ऑल दी कॉलम्स के लिए मेरे पास एक जनरल वर्ड है रेंज, है ना, रेंज। तो मैंने कोलन लगा दिया, कोलन का मतलब ऑल दी कॉलम्स। इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो देखिए मैं प्रेस एंटर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक नया मैट्रिक्स बन गया, न्यू मैट्रिक्स बन गया या वेक्टर बन गया, जिसके अंदर सेकंड रो आ चुकी है, 3, 6, 9, 12, 15, 18 आ गई है। और देखिए यहाँ पे भी न्यू वेरिएबल आपका वर्क स्पेस में बन गया है। आप जो कुछ भी यहाँ कर रहे हैं, वर्क स्पेस पैरेलली अपडेट हो रहा है। whatever you are doing here, that is parallelly updated in the workspace also. ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इस सेकंड वाली रो में से मुझे तो केवल 4 एलिमेंट चाहिए। कौन से एलिमेंट चाहिए? 4 एलिमेंट चाहिए, 3, 6, 9 और 12। तो उसकी कमांड क्या होगी? उसकी कमांड होगी, एक नया मैट्रिक्स बना देते हैं, लेट न्यू वन इक्वल टू, कौन सा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का नाम देना होगा पहले ए, और उसके बाद आपको रो और कॉलम डिफाइन करने पड़ेंगे। तो कॉलम कौन सा, रो कौन सी है? सेकंड रो है। कॉलम कौन सा है? फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है, 4 ही कॉलम है। तो मैं लिखूंगा 1:4, 1 से 4 तक, 1:4। तो देखिए अब इसका आउटपुट क्या आता है। तो यू आर गेटिंग द आउटपुट 3, 6, 9 एंड 12। तो आपको मिल रहा है 3, 6, 9, 12। कुछ समझ में आया? मैं मैट्रिक्स के साथ प्ले कर रहा हूं। मैं मैट्रिक्स में से जो मर्जी वैल्यू निकाल सकता हूं, उस वैल्यू को कहीं फर्दर यूज कर सकता हूं, किसी दूसरे प्रोग्राम में यूज कर सकता हूं, है ना। मेरे पास मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये सोच लो कि इस मैट्रिक्स के अंदर ये सारी वैल्यूज जो है समथिंग इन फॉर्म ऑफ फोर्सेस है ना, इन समथिंग फॉर्म्स ऑफ न्यूटन्स वैल्यू है, फोर्सेस वैल्यू है, या ये स्ट्रेस है, या ये स्ट्रेन है। तो इन स्ट्रेस स्ट्रेन वैल्यू पे मैं मैकेनिकल की हैवी कंप्यूटेशंस करा सकता हूँ, है ना। मैट्रिक्स मैटलैब मेरे को एक कंप्यूटेशन का पूरा मैट्रिक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म दे रही है ना। दैट्स व्हाई इट इज यूजफुल टू यू। सो इस तरह से हमने, मान लीजिए मैं ये चाहता हूं कि ये वाला कॉलम निकल के आ जाए 14, 21, 28, 35। तो मेरी कमांड क्या होगी? आप में से कोई भी एक बताइए। मैं ये चाहता हूं, क्वेश्चन सुन लीजिए, 14, 21, 28, 35 ये वाला कॉलम निकल के आ जाए पूरा।
तो देखिए एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे सी, कॉलन 7 कॉलन कॉमा 7 हाँ सी इक्वल टू ए, क्या लिखेंगे बोलिए, कॉलन कोलन, वेरी गुड, कॉमा 7 कॉमा 7, क्योंकि ये 7th कॉलम है इसलिए 7, वेरी गुड। चलिए प्रेस एंटर करिए, सो यू आर गेटिंग आंसर 14, 21, 28, 35। तो इस तरह से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, करेक्ट। चलिए अब एक आपके लिए क्वेश्चन है कि मान लो आपको ये इसकी टॉप वैल्यू निकालनी है 2, 5, 20, 50, इस मैट्रिक्स की कॉर्नर वैल्यूज निकालनी है आपको। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, आई एम इंटरेस्टेड in finding the corner values. So this is the top left corner, this is the bottom left corner, top right corner and bottom right corner. ये 4 वैल्यूज मुझे निकालने हैं। तो कैसे निकालूंगा, कमांड बताएगा कोई भी, कुछ भी दिमाग में आ रहा हो, जस्ट डिस्कशन है ना, पहली बार तो ऐसे सीखते हैं। तो उसकी कमांड क्या होनी चाहिए, तो चलिए कॉर्नर वैल्यूज के लिए एक मैट्रिक्स बना देते हैं। कॉर्नर इक्वल टू, corner is just the name of the matrix, है ना, corner is just the name of the matrix। तो इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा कमांड में, मैट्रिक्स का नाम और आप कौन कौन सी रो में इंटरेस्टेड हैं और आप कौन कौन से कॉलम में इंटरेस्टेड हैं। तो देखिए आप 2 में इंटरेस्टेड हैं तो ये कौन सी रो में आता है, पहली रो में आता है। आप 5 में इंटरेस्टेड हैं, कौन सी रो में आता है, चौथी रो में, चौथी रो में आता है ना, फर्स्ट रो एंड फोर्थ रो। तो यू आर इंटरेस्टेड इन फर्स्ट रो एंड फोर्थ रो, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, 4, उसके बाद मैंने क्या किया, कॉमा। एक बार ध्यान से समझ लेना इसको बहुत आराम से, मैट्रिक्स का नाम लिखना है, उसके बाद आपको रो की डिटेल देनी है, और रो की डिटेल जब आप देंगे तो उसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है फर्स्ट रो एंड फोर्थ रो। फर्स्ट और फोर्थ मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं 2 में इंटरेस्टेड हूं, 5 में इंटरेस्टेड हूं, 20 में इंटरेस्टेड हूं, 50 में इंटरेस्टेड हूं। तो 2 और 20 सेकंड रो में, फर्स्ट रो में आते हैं, और 5 और 50 फोर्थ रो में आते हैं। क्लियर। अब बताइए मैं कौन से कॉलम में इंटरेस्टेड हूं, आई एम इंटरेस्टेड इन फर्स्ट एंड 10th कॉलम। Yes, first and 10th. So I will just write first and 10th. So I will use a square bracket over here, 1 space 10. अब मैं इसको यदि प्रेस करूं तो मुझे कॉर्नर वैल्यूज मिलनी चाहिए। प्रेस एंटर, oh exactly I am getting the corner values 2, 25 and 50। तो मेरे ख्याल से ये 3-4 कमांडों से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम मैट्रिक्स की मनचाही वैल्यूज निकाल सकते हैं, चाहे कॉर्नर हो, बीच की हो, आगे की हो, पीछे की हो, व्हाटएवर इज द वैल्यू वी कैन फाइंड। ठीक है। अब चलिए एक चीज और सिखाते हैं आपको। मान लीजिए इसको मैंने CLC कर दिया, ठीक है, मैट्रिक्स ए को देख लें क्या है, वही है 4/10 का मैट्रिक्स। तो अब ये 4/10 के मैट्रिक्स को मैं तो 3/10 का बनाना चाहता हूं, मतलब इसकी एक रो को मैं डिलीट करना चाहता हूं, एक रो को मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा रो ही डिलीट हो जाए, है ना। तो बताइए कौन सी रो को आप डिलीट करना चाहेंगे, फर्स्ट रो को, सेकंड रो को, थर्ड रो को, फोर्थ रो को। मान लीजिए हम थर्ड रो को डिलीट करना चाहते हैं। तो देखिए अब डिलीशन कमांड देखिए, कैसे कमांड देंगे डिलीशन की। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स का नाम लिखना होगा, ठीक है, मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए। अब उसके अंदर आप ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद आप लिखेंगे कौन सी रो को आप डिलीट करना चाहते हैं। तो यू वांट टू डिलीट द थर्ड रो, तो यू विल राइट 3, है ना, थर्ड रो, एंड ऑल द कॉलम्स। आप पूरे ऑल द कॉलम्स को डिलीट करना चाहते हैं, तो ऑल द कॉलम्स मतलब आप एक सिंगल कोलन लगा देंगे, तो मैटलैब अपने आप समझ जाता है कि यू आर इंटरेस्टेड इन ऑल द कॉलम्स, है ना। ये बात ध्यान से समझ लीजिए कि कोलन का मतलब वो मैटलैब अपने आप समझता है कि यू आर इंटरेस्टेड इन ऑल द कॉलम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स which you are specifying. So A, third row, all the columns equal to blank matrix, है ना, blank, स्क्वायर ब्रैकेट करके छोड़ दिया उसको, सो दीजिए ब्लैंक मैट्रिक्स, प्रेस एंटर। बोलिए क्या हुआ, पहले ये 2, 3, 4, 5 था, अब ये 2, 3, 5 हो गया है। मैट्रिक्स वही है, मैट्रिक्स का नाम तो वही है, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर पहले 4 रो थी, अब मैट्रिक्स के अंदर केवल 3 रो हैं।
तो देखो मैट्रिक्स क्रिएट करना हमको आ गया, मैट्रिक्स की वैल्यूज को कॉल करना हमको आ गया, मैट्रिक्स की किसी रो को डिलीट करना हमको आ गया। ठीक है, रो डिलीट कर सकते हैं। अब आप कॉलम डिलीट कर दीजिए। चलिए कौन सा कॉलम, कौन सा, हाँ बोलिए। यस, कोई क्वेरी है? मान लीजिए कि आप ये वाला कॉलम डिलीट करना चाहते हैं 10, 15, 25, तो इसकी कमांड क्या होगी जरा बताइए। ए, आप इस पूरे कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं और ये कॉलम नंबर कौन सा है? 5वां। और रो कौन सी है? सारी रो है। तो रो के लिए तो आप लगाइए कोलन, कॉमा करिए और कॉलम नंबर आप दे दीजिए 5। तो देखिए 5वां कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। प्रेस एंटर। क्या आंसर आया? ये इसने कॉल कर दिया। हाँ, मैंने इक्वल टू ब्लैंक थोड़ी किया। यदि मैं इक्वल टू ब्लैंक करता तो ये डिलीट होता। अभी डिलीट नहीं हुआ है, उसने उसे कॉल कर दिया है। तो 10, 15, 25 आपने कॉल कर लिया है। और कॉल किस वेरिएबल में कर लिया है? बाय डिफॉल्ट वेरिएबल आंसर में कर लिया है। यदि इसी कमांड को इक्वल टू ब्लैंक कर देते, इक्वल टू ब्लैंक मैट्रिक्स, तो फिर ये मैट्रिक्स 10, 15, 25 यहां से डिलीट हो जाता। प्रेस एंटर। तो देखिए आपका 10, 15, 25 खत्म हो गया है। 8, 12 के बाद 12, 18 आ गया है। 8, 12, 20 के बाद 12, 18, 30 आ गया है। तो ये 10, 15, 25 आपका डिलीट हो गया है। करेक्ट? सो इन दिस वे वी कैन डिलीट द वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर है? यहां तक कोई क्वेरी ना? मैं सीएलसी कर रहा हूं, कोई क्वेरी हो तो यहां तक बताइए। और इसके बाद फिर मैं आपको प्लॉटिंग कराऊंगा सर्किल की। सर क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर जैसे कि आपने मान लो मैंने मैट्रिक्स किया और उसमें किसी भी लाइन या कॉलम को मैंने कॉल किया और मैंने कोई भी वेरिएबल दिया और डिफॉल्ट में उसने आंसर ले लिया। हाँ, और दूसरी बार भी जब मैंने मान लो बी मैट्रिक्स दिया, उसमें भी ऐसे किया और उसमें भी कुछ नहीं दिया और डिफॉल्ट में उसने भी आंसर ले लेगा। ठीक है। तो पुराना वाला आंसर खत्म हो जाता है मेमोरी से, है ना? जैसे मतलब आंसर का मतलब करंट वेरिएबल है वो, करंट है ना? हाँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 45, तो अब मैं कोई वेरिएबल नहीं दे रहा हूं, तो ये 45 आंसर में जाएगा। ठीक है, तो आंसर की वैल्यू 45 है। अब मैंने कहा 90, तो अब ये 90 किस में जाएगा? वो भी आंसर में जाएगा। तो पुराना आंसर जो था 45 वाला था वो खत्म हो गया। अब नया आंसर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आंसर इज 90। इसलिए ये एडवाइजेबल है कि आप अपना वेरिएबल जरूर दें, क्योंकि आंसर वेरिएबल तो फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है करंट टाइम के अंदर। और कोई क्वेरी? ठीक है, तो अब जरा सा प्लॉटिंग कर लेते हैं ना। और प्लॉटिंग में आपको यहां भी बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एडिटर के अंदर। तो एक साथ हमारे दो काम हो जाएंगे। एक तो एडिटर में काम कैसे करते हैं और सर्किल की प्लॉटिंग कैसे करेंगे, ये भी दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी। सो लेट आई एम स्टार्टिंग इन न्यू स्क्रिप्ट। नई फाइल बना रहे हैं और इस फाइल के अंदर हम क्या करना चाहते हैं? प्लॉट करना चाहते हैं सर्किल को, है ना? तो मान लीजिए मुझे कोई जनरल कमेंट लिखनी है कि दिस प्रोग्राम इज फॉर सर्किल, है ना, टू प्लॉट ए सर्किल। तो मैटलैब में इसके लिए कमांड होती है। देखो ये परसेंटेज आपको दिख रहा है यहाँ पे, परसेंटेज मेरे एरो के पास में दिखाई दे रहा है परसेंटेज आपको? यस सर। तो लिखा हुआ है कमेंट। तो मुझे कोई जनरल कमेंट देनी हो तो मैं परसेंटेज सिंबल से दे सकता हूं। तो टू प्लॉट ए सर्किल। ठीक है, अब ये कमेंट का मतलब होता है कि ये लाइन कोडिंग का पार्ट नहीं है, है ना? इसका कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है। इसको लिखो या मत लिखो, कोडिंग उसी प्रकार एग्जीक्यूट होगी जैसे होनी है। ठीक है, ये जस्ट यूजर को समझाने के लिए है कि इस प्रोग्राम में क्या होने वाला है, जस्ट कमेंट टाइप में। चलिए, तो अब प्रोग्राम शुरू करते हैं। कभी भी मैटलैब में कोई प्रोग्राम शुरू करें तो इट इज एडवाइजेबल कि आप सीएलसी कमांड का यूज करें। अब सीएलसी कमांड क्या करती है? कमांड विंडो को क्लियर करती है। अभी देखो कमांड विंडो में आप ध्यान दें नीचे, तो इसमें कहीं 90 लिखा हुआ है, कहीं 45 लिखा हुआ है। तो जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले सीएलसी कमांड लगी हुई है। इसका मतलब ये पुराना जो आउटपुट है इस कमांड विंडो में,
ये आउटपुट डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा। तो इट इज बेटर स्क्रीन साफ हो जाए, इसलिए आप सीएलसी कमांड किसी भी प्रोग्राम में सबसे पहले जरूर लगाएं, एडवाइजेबल है। यदि आप नहीं भी लगाएंगे तब भी प्रोग्राम तो चलेगा, लेकिन वो साथ में पुराना आउटपुट भी मिक्स रहेगा ऊपर में, तो थोड़ा सा रीडेबिलिटी में या उसमें दिक्कत आ सकती है ना। तो इट इज बेटर कि आप सीएलसी का यूज करें। दूसरा, इट इज आल्सो बेटर कि आप क्लियर का भी यूज करें। क्लियर मीन्स इट क्लियर्स ऑल द वेरिएबल्स इन द वर्क स्पेस। तो अभी देखें कितने सारे वर्क स्पेस है, और मैं प्लॉट कमांड बना रहा हूं किसका, सर्किल का प्रोग्राम बना रहा हूं, और सर्किल के प्रोग्राम में मुझे किसी भी वेरिएबल की जरूरत नहीं है। तो ये सारे के सारे वेरिएबल प्रोग्राम की स्टार्टिंग होने पर क्लियर हो जाए, यानी कि मेमोरी से डिलीट हो जाए। तो इस तरह से आप सीएलसी क्लियर कमांड जरूरत लगानी ही चाहिए। लगभग हर प्रोग्राम में ये दो कमांड आपको लगानी चाहिए। अब इसके बाद ये लाइन नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4, नो प्रॉब्लम। अब मुझे सर्किल प्लॉट करना है, ठीक है। अब सर्किल प्लॉट कैसे होगा, तो सर्किल को प्लॉट करने के लिए, है ना, सर्किल को प्लॉट करने के लिए थोड़ी सी वर्किंग हम करते हैं। थोड़ी सी पहले मैं बोर्ड शेयर कर रहा हूं आपको जरा, है ना। आई एम शेयरिंग दी बोर्ड अगेन, और मैं जरा सा सर्किल पे काम करूंगा, है ना। तो इस बोर्ड में देखिए, पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूं। देखिए ये मेरे पास सर्किल है ना, या मैं सर्किल बना लेता हूं। इसमें कमांड है मेरे पास सर्किल का, लेट दिस इज अ सर्किल, ठीक है। अब इस सर्किल में ये तो सेंटर है, और यहां पे कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं, लेट पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो यदि सेंटर से पी को मिला देंगे तो इट विल ए रेडियस ऑफ, लेट दिस इज आर। तो यदि मैं इसका ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस खींच दूं, और इसका मान लीजिए मैं वर्टिकल एक्सिस भी खींच दूं, जो सेंटर से पास हो रहा है, तो ये रेडियस यदि यहाँ पर थीटा एंगल बना रही है, तो आपको पता है कि दो तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कार्टेशियन जिसमें एक्स वाई चलता है, और एक होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना। पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप किस फॉर्म में चलता है, आर थीटा, वेयर आर इज द रेडियस, थीटा इज द एंगल, है ना, पोलर कोऑर्डिनेट्स। और ये कोऑर्डिनेट्स कौन से कहलाते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में सर्किल की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर या आर स्क्वायर। यदि मैंने रेडियस आर ले रखी है तो आर स्क्वायर, ए ले रखी है तो ए स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। यदि मुझे पोलर कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन चाहिए आर थीटा के फॉर्म में, या इन दोनों के क्या रिलेशन है आपस में एक्स वाई और आर का, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है कि x इक्वल टू होता है r cos थीटा और y इक्वल टू होता है r sin थीटा। ये रिलेशन है बिटवीन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। इन दोनों इक्वेशंस को आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ से यदि आप परपेंडिकुलर डाल देंगे P पॉइंट से, लेट दिस इज द परपेंडिकुलर, सो दिस इज डिस्टेंस y, दिस इज डिस्टेंस x, और ये आपका ट्राइंगल है PQR, let R is the center of the circle. So PQR ट्राइंगल में यदि आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करें तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका बेस कितना है x और हाइपोटेनस कितना है r, so x by r, so you get x equal to r cos theta. Similarly sin theta is perpendicular upon hypotenuse, so it is y equal to r sin theta. ये दोनों इक्वेशन बड़ी इजीली आपको मिल जाती हैं। तो ये एक तरह से सर्किल की इक्वेशन ही है। ये क्या है, एक तरह से सर्किल की इक्वेशन की तरह ही ट्रीट होती है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये जो जनरल पॉइंट है x y, कभी यहाँ पे होगा, कभी ये पॉइंट यहाँ होगा, कभी ये पॉइंट यहाँ होगा, ये पूरे सर्किल पे लोकस है। इस पॉइंट का जो लोकस है वही सर्किल है। सर्किल क्या है, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट P which travels in such a fashion so that its distance from a fixed point is always same. यही तो सर्किल की डेफिनेशन है। तो इस P पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कुछ इस तरह से चलते हैं, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। बस इसी का हम अब यूज करने वाले हैं
अपने उसमें मैटलैब में। ठीक है, अपने मैटलैब में अब हम इसको यूज करने वाले। तो अब मैं इसको तो बंद कर देता हूं और मैटलैब को शेयर कर देता हूं दोबारा से, है ना। तो लेट मैं इसे क्लियर कर देता हूं और इस बोर्ड को स्टॉप करता हूं और मैं मैटलैब को शेयर करता हूं दोबारा, और वहां पर मैटलैब विंडो इज हियर, शेयर। तो मैं अपनी फाइल में आ गया। तो अब मुझे क्या करना है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा इज माई इक्वेशन। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, x इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड कॉस थीटा, है ना। अब देखो, मान लीजिए थीटा जो लैटिन का वर्ड है वो तो मैं यहाँ लिख नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, थीटा के लिए एक वर्ड यूज करूंगा, THETA, है ना। मैं थीटा नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, थीटा, लेट द नेम ऑफ द वेरिएबल। और थीटा की जो वैल्यू है वो पूरे सर्किल में कहां से कहां तक वेरी करती है, 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में वेरी करती है। तो 0 से 360 के बीच में मैं थीटा की वैल्यूज डिफाइन कर रहा हूं। 0 फर्स्ट वैल्यू विथ ए इंक्रीमेंट ऑफ 10, लास्ट वैल्यू इज 360। देखो ध्यान से देखना, अभी हमने क्या समझा था, रेंज ऑपरेटर, पिछली लैब में समझा था ना। तो देखो अब थीटा को बनाने में रेंज ऑपरेटर का क्या यूज आया। फर्स्ट वैल्यू ऑफ द एंगल इज 0 डिग्री, डिफॉल्ट इंक्रीमेंट ऑफ 10 डिग्री एंड द लास्ट वैल्यू इज 360 डिग्री। तो मैंने पूरा सर्किल कवर कर लिया 0 to 360 विथ ए स्टेप इंक्रीमेंट ऑफ 10। यदि मैं 5 लिखूंगा तो 5 के स्टेप से भी कन्वर्ट कर देगा, है ना। जितना चाहूंगा उतना इंक्रीमेंट में दे सकता हूं, करेक्ट। अब जरा सा यहाँ कमांड विंडो में आते हैं। अब यहाँ कमांड विंडो में देखिएगा कि कमांड विंडो में मान लीजिए मैंने लिखा साइन 45। कितनी वैल्यू होती है साइन 45 की, बताइए। 1/√2, 1/√2, है ना। 1/√2 को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, 0.7071 आता है ना। डिवाइड करके देख लीजिए, 0.7071 आता है, करेक्ट। तो यहां पर ये तो 0.8509 दे रहा है। तो अब देखिए, यदि इसी कमांड को मैं ऐसे लिखूं, साइन D45, साइन D45, केवल मैंने D वर्ड लगाया है इसमें एक्स्ट्रा। तो देखिए अब इसका आंसर क्या आएगा, 0.7071। तो यहां पर आपको पता है D का मतलब डिजिट, डिग्री, है ना। ये 45 तो मैटलैब डिग्री में अज्यूम कर रहा है क्योंकि आपने D लिख दिया है। और यदि आप यहाँ पे D नहीं लिख रहे हैं तो ये 45 रेडियन में अज्यूम कर रहा है, ठीक है। किसमें अज्यूम कर रहा है, रेडियन में अज्यूम कर रहा है। तो देखिए मुझे यहाँ पर वैल्यू थीटा की किस में देनी है, डिग्रीज में देनी है। तो मुझे कॉस की जगह कॉस डी यूज करना पड़ेगा, कॉस डी, और किसका, थीटा, कॉस डी थीटा। तो देखिए क्या हुआ, थीटा इक्वल टू 0 से लेके 360 तक, फिर x बराबर आर कॉस थीटा, और इसी प्रकार से मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो r मल्टीप्लाइड साइन और ब्रैकेट में थीटा। अब देखो थीटा के अंदर कितनी वैल्यू है, 10-10 के इंक्रीमेंट से 36-37 वैल्यू आ जाएंगी इसके अंदर, 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके 36-37 वैल्यू आ जाएंगी। तो जब सर साइन डी थीटा, हाँ डी आएगा बिल्कुल इसके अंदर, साइन डी। अब ये 37 वैल्यूज थीटा में हैं, तो x के अंदर भी 37 वैल्यूज हैं और y के अंदर भी 37 वैल्यूज हैं। अब देखो x इक्वल टू r, अब r पे एरर आ जाएगी क्योंकि आपने रेडियस डिफाइन नहीं करी। तो इसलिए इट इज बेटर कि आप पहले रेडियस डिफाइन करें। तो लेट द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 1, है ना, कोई भी मैंने दे दिया, रेडियस सर्किल की 1 है। तो अब उसको r मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा, x मिल जाएगा, y मिल जाएगा, ठीक है। बस इसके बाद क्या करना है, प्लॉट x, y, तो आपका सर्किल बन जाएगा, प्लॉट x, y। यदि मैं इस कमांड को रन करूं, यहाँ पर रन कमांड देख रहे हैं, तो ये कोडिंग का जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, टाइम खत्म होने को है। टेक दिस स्क्रीनशॉट और इस रन कमांड से रन करिएगा, जहां आपको सर्किल नजर आएगा मैटलैब में, ठीक है।
तो अब यदि लैब क्लोज भी हो जाती है देन नो प्रॉब्लम, दिस इज द फाइनल कोडिंग फॉर प्लॉटिंग ए सर्कल। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या किया है जरा मैं समराइज कर दूं। मैट्रिक्स क्रिएशन, मैट्रिक्स डिलीशन, मैट्रिक्स कॉलिंग और सर्किल प्लॉटिंग और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग। ठीक है, कोई डाउट हो तो जरा डिस्कस कर सकते हैं। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका फोटो खींच लीजिए आप कोडिंग का और रन करिएगा, एज ए असाइनमेंट रखिए, आपका सर्किल बनेगा इस कमांड से। कोई अभी क्वेश्चन हो आपका? ठीक है, समझ में आया? यदि कोई डाउट्स हैं देन वी कैन अगेन रिवाइज इन द नेक्स्ट लैब। यस सर, आ गया, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो 3:01 हो गई है। नाउ आई एम एंडिंग दिस मीटिंग, है ना? ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक। और जो हमारा एसएफडी छूट गया है ना आज, वो हम कल की क्लास में करेंगे, स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में। हाँ सर ये पूछ रहा था सर, जो क्रियो का सर वो मैथ कैड है सर, वो भी सर यही सेम है अलग है वो? कौन सा सर क्रियो में सर जो मैथ कैड आता है, क्रियो के जो सॉफ्टवेयर आता है क्रियो का पैरामीट्रिक और उन सब के साथ सर मैथ कैड भी है? वो अलग है, उसमें लिमिट्स हैं उसकी काफी। ये बहुत एडवांस्ड है, इसके अंदर तो सिग्नल प्रोसेसिंग, फोरकास्टिंग सब चीजें होती हैं, वो सब उसके अंदर नहीं होती है, है ना? उसका बहुत लिमिटेड स्कोप है। दिस इज मोर यूजफुल। सर इसकी लिंक डाल देना सर ग्रुप में। मैटलैब का, हाँ मैं अभी शेयर करने वाला हूँ, एक गूगल ड्राइव से शेयर करूंगा, तो उसकी हेल्प से आप ना लैपटॉप में लोड कर लीजिएगा मैटलैब। और मैटलैब मोबाइल कितने लोगों ने लोड किया है अपने पर? मैटलैब मोबाइल है ना, उसमें भी आप ये कमांड तो चल जाएंगी सब उसमें। मैटलैब मोबाइल में आप चला के देखिएगा, सर्किल प्लॉट हो जाएगा इसको रन कर। सर उसका साइज कितना होगा सर लैपटॉप वाले का? लैपटॉप वाले का साइज फुल, वो तो फुल है, 6 GB है उसका साइज, 6 GB है ना, ज्यादा है वो आराम से हो जाएगा। चलिए, तो मैं जरा सा अभी मेरे ख्याल से अभी लैब चल रही है, तो मैं जरा सा प्लॉट कर देता हूँ सर्किल। एक बार मैं इसको रन करता हूँ कमांड को, आपके आगे देखिए मैं रन करता हूँ। तो रन, जैसे ही मैंने रन किया तो देखो ये सबसे पहले मुझसे क्या कह रहा है कि आप अपने प्रोग्राम को सेव करिए। तो ये बहुत अच्छी बात है मैटलैब के अंदर कि जो कुछ भी रन होता है वो पहले सेव होता है। तो अभी मैटलैब को फाइल का नाम नहीं पता है किस नाम से सेव करना है, तो मान लेते हैं कि इसको हम सर्किल नाम से ही सेव कर देते हैं, है ना, या इसको नाम दे देते हैं सर्किल 1, है ना, सर्किल 1। नाम में कोई स्पेस वगैरह मत रखिएगा, सर्किल स्पेस 1 देंगे तो एरर आ जाएगी, सर्किल 1 नो स्पेस, और इसको सेव कर दीजिए, है ना। जैसे ही इसने सेव किया, सेव करने के बाद देखो सर्किल बन गया है मेरे सामने, और आपके सामने ब्लैक स्क्रीन आ रही होगी। यस सर, ब्लैक स्क्रीन। तो मुझे सर्किल दिख रहा है, वो आपको ब्लैक स्क्रीन इसलिए दिख रही है क्योंकि ये वाली स्क्रीन शेयर नहीं है। ठीक है, तो सर्किल बन चुका है। अब मैं जरा सा पहले आपको कमांड विंडो समझा दूं। कमांड विंडो पर भी देखो आउटपुट आया है, जरा ध्यान से देखना क्या क्या आउटपुट आया है कमांड विंडो पर। थोड़ा सा बड़ी कर लेता हूँ कमांड विंडो को, है ना, आउटपुट देखने के लिए। तो अब इस आउटपुट को आप देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्या आया है, r = 1, इसका मतलब रेडियस डिफाइन हुई है। उसके बाद थीटा मतलब एंगल डिफाइन हुआ है। तो थीटा के एंगल देखो 0, 10, 20, हमने 10 का इंक्रीमेंट दिया था ना, तो 0, 10, 20 ये आपकी थीटा की वैल्यूज देखो, 37 वैल्यूज आ गई 360 तक। ये पूरा थीटा डिफाइन हो गया। अब थीटा डिफाइन होने के बाद एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यूज आ गई 37 वैल्यूज, और उसी तरह देखो वाई कोऑर्डिनेट की 37 वैल्यूज आ गई। ठीक है, और उसके बाद जो प्लॉट कमांड है उसका ये फिगर आउटपुट आ गया। ठीक है, इस फिगर विंडो को भी मैं चलो शेयर कर देता हूं, है ना। एक ऑप्शन है मेरे पास यहाँ न्यू शेयर, तो न्यू शेयर से मैं इस फिगर विंडो को शेयर कर देता हूं, तो आपको सर्किल दिखाई देने लग जाएगा। देखिए अब आपको सर्किल दिख रहा है। यस सर, यस सर, दिस इज द आउटपुट ऑफ दैट प्लॉट, है ना। चलो अच्छा है, इसका मतलब कोई इस आईडी से कोई और क्लास नहीं होगी, अन्यथा ये फिर अपने आप ही टर्मिनेट हो जाता है। 3-5 हो चुका है ना, तो कोई और क्लास इस वक्त नहीं होगी, इसलिए कंटिन्यू है। तो चलिए ठीक है, आज हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। प्लीज रिवाइज दिस एंड राइट डाउन योर
लैब कॉपी, है ना। अपनी जैसे लैब फाइल आप बनाते हैं, उसमें सबसे पहला एक चैप्टर बनाइए, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बेसिक मैटलैब कमांड्स, और उसके अंदर आप इन कमांड्स को नोट कर लीजिए, है ना। अपने तरीके से नोट कर लीजिए कि CLC कमांड डूज दिस, हर कमांड के बारे में एक एक लाइन लिख लीजिए कि ये कमांड ये करती है, ये कमांड ये करती है, सो दैट ये आपकी मेमोरी में भी आ जाएगा और फिर हम इफिशिएंट प्रोग्राम बना पाएंगे। ठीक है। अब मान लीजिए एक चीज